Good morning, class. I once again welcome all of you. I hope all of you are doing well and everyone is safe and healthy at home. Okay. So let us start with our today's class. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर शुरू किया है. ओके, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर and we have started with our second chapter. I have already completed with one topic of second chapter. Today we will start with another topic. But before proceeding with the class, let me again revise a little bit about my previous class so that you remember everything freshly. Okay. हम लोगों ने अपना सेकेंड चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन. ठीक है. There are two grounds of induction, formal ground and material ground. What is ground of induction? Ground of induction का मतलब है वो बेस जिसके थ्रू इंडक्शन जनरल रियल प्रोपोजिशन एस्टैब्लिश करता है. On what basis induction establish general real proposition? That base is called ground of induction. ठीक है. Now, as I have already told you that ground of induction, there are two grounds, formal ground and material ground. Formal ground is subdivided into law of uniformity of nature and law of causation, and material ground also is subdivided into two types, that is observation and experiment. In my previous video, I have explained you about the law of uniformity of nature. What is law of uniformity of nature? What are its kind? What are its meaning? What are its form? That I have explained to you in my previous video. आज का जो वीडियो है ये एक बहुत ही ज़्यादा important टॉपिक है and it is little tricky to understand. So listen to the video carefully. ठीक है. ये जो टॉपिक है आज का ये भी थोड़ा बहुत लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर के साथ ही रिलेटेड है. ठीक है. Now let us start with our class. What is the topic? What is the name of the topic? The name of the topic is paradox of induction. Okay, once again, the name of the topic is paradox of induction. Very important. सबसे पहले जान लेते हैं पैराडॉक्स क्या है. व्हाट इज अ पैराडॉक्स? पैराडॉक्स का मतलब है जब दो चीज एक साथ हो. ओके, एक ही साथ दो चीज का होना, समथिंग कॉन्ट्रडिक्टरी. ओके, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स, जो कि इम्पॉसिबल है. एक ही साथ दो चीज का होना इम्पॉसिबल है. ओके, जैसे मैंने आप लोगों को फॉर्मल ट्रुथ में समझाया था, कॉन्ट्रडिक्शन, two things happening at the same time, like I am in the classroom and at the same time I am in my say kitchen. So if I say like that at the same time, is it possible? So it is not possible. एक साथ ये दोनों चीजें नहीं हो सकता है. Okay, so this kind of situation can be addressed as a paradox. ठीक है. Now according to J.S. Mill, the famous logician J.S. Mill, the law of uniformity of nature. By now all of you know what is law of uniformity of nature. So according to J.S. Mill, the law of uniformity of nature is the result as well as the ground of induction. Okay, what is paradox of induction? Paradox of induction का मतलब क्या है? मैंने अभी आप लोगों को समझाया paradox का मतलब क्या है. Now paradox of induction का मतलब क्या है? So let us see paradox of induction. Paradox, according to the paradox of induction, the law of uniformity of nature is the ground of induction as well as the result of induction. Once again, the law of uniformity of nature is the ground of induction as well as the result of induction. ठीक है. This is known as paradox of induction. So अगर क्वेश्चन आए what is paradox of induction,
then your answer should be this definition, that the paradox of induction means the law of uniformity of nature is the ground of induction as well as the result of induction. Now इसको paradox क्यों कहा जाता है? Why it is a paradox? Why it is say two things at the same time? Okay, why it is a paradox? It is a paradox because एक ही प्रिंसिपल, दैट इज लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, एक ही लॉ, उसको इंडक्शन का ग्राउंड भी माना गया है. ग्राउंड मतलब बेस, बेस ऑफ इंडक्शन, जिसमें बेस करके वो अपना कंक्लूजन तक पहुंचता है, दैट इज द ग्राउंड ऑफ इंडक्शन. सो लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को वो ग्राउंड, वो बेस भी माना गया है इंडक्शन का, एज वेल एज उसको कंक्लूजन भी माना गया है. रिजल्ट मतलब कंक्लूजन. ठीक है. सो इज इट पॉसिबल कि एक ही चीज ग्राउंड भी हो, बेस भी हो और रिजल्ट भी हो? ओके, हाउ इट इज पॉसिबल? एट द सेम टाइम द सेम थिंग कैनॉट बी द बेस एज वेल एज द कंक्लूजन, रिजल्ट. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, अगर आप एक सीड अगर मैं आपको दूं और बोलूं कि आप उसको प्लांट कीजिए, उसको लगाइए, तो उस सीड को लगाने में व्हाट विल बी द बेस ऑफ दैट सीड? कहाँ पे आप लोग प्लांट करोगे? आप लोग उस सीड को प्लांट करोगे इन सॉइल. ओके, सॉइल में प्लांट करोगे. सो दैट सॉइल इज द बेस और ग्राउंड ऑफ दैट सीड, जिसके थ्रू वो प्लांट, वो सीड जर्मिनेट होगा, वो प्लांट बड़ा होगा. जब वो प्लांट बड़ा होके एक से उसमें अगर फ्रूट आया, तो फिर क्या वो ग्राउंड, दैट सॉइल एंड दैट फ्रूट कैन बी सेम थिंग? दोनों सेम है? नो, वी कैनॉट कंसिडर दैम टू बी सेम, बिकॉज वन इज द ग्राउंड, द बेस, जिसमें हम लोगों ने वो सीड को लगाया, एंड वन इज द कंक्लूजन, द फ्रूट, द रिजल्ट विच वी गेट फ्रॉम दैट plant. So in the similar way, the law of uniformity of nature cannot be two things at the same time. Okay, it cannot be both ground as well as the result. Are you getting my point? So according to J.S. Mill, the law of uniformity of nature is the ground of induction as well as the result of induction, which is impossible. Okay, according to other thinkers, दूसरे लॉजिशियंस ने मिल के इस स्टेटमेंट को एक पैराडॉक्स बताया है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि ग्राउंड और रिजल्ट दोनों एक ही चीज हो. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट ऑफ मिल हैज बीन कंसिडर्ड एज अ पैराडॉक्स. ठीक है. सो लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इट इज अ पैराडॉक्स. Law of uniformity of nature is the result of unscientific induction. हम लोगों को नेचर के बारे में कैसे पता चलता है? दैट नेचर इज यूनिफॉर्म, नेचर हमेशा सेम बिहेव करता है. ये बात हम लोगों को कैसे पता? अगर आसमान में काले बादल छाए तो हम लोग हमेशा छाता लेके निकलते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि बारिश होगा. सो ये जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर है, ये जो बिहेवियर ऑफ नेचर है, ये हम लोगों को कैसे पता? फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, राइट, एंड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. मीन्स वी मेक अ प्रपोजिशन, अ कंक्लूजन थ्रू अनसाइंटिफिक इंडक्शन, क्योंकि अनसाइंटिफिक इंडक्शन में ही हम लोग किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, राइट. सो यहाँ पे भी नेचर इज यूनिफॉर्म, ये हम लोगों को पता चला through our experience. So the law of uniformity of nature is the result of unscientific induction. Unscientific induction के through हम लोगों ने ये conclusion निकाला that nature is always uniform, हमेशा same रहता है nature, same equally behave करता है हमेशा. Okay, this we know from our experience. So it is the result of unscientific induction. Means law of uniformity of nature is the result of unscientific induction. ठीक है. Now अगर ये unscientific induction का result है, तो फिर induction कैसे इस पर बेस कर सकता है?
how it will be the ground. If it is the result of induction, then how it will be the ground of induction. एक ही लो दोनों रिजल्ट और ग्राउंड कैसे हो सकता है, राइट? लाइक as we already know that under formal ground there is law of uniformity of nature and law of causation. मतलब it is the ground of induction also. So दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकता है? इस तरह से मिल क्या कर रहे हैं, मिल एक ही चीज को घुमा घुमा के बोल रहे हैं, राइट? वो बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर इज द ग्राउंड ऑफ इंडक्शन एंड लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर इज द रिजल्ट ऑफ इंडक्शन. सो इट इज लाइक ए सर्कल. वो किसी कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, वो अपने बात को सिर्फ एक ही जगह में घुमा रहे हैं. ही इज आर्ग्यूइंग इन अ सर्कुलर वे, राइट? एक ही चीज को ग्राउंड भी बता रहे हैं और रिजल्ट भी बता रहे हैं, दोनों बता रहे हैं एक ही चीज को, जो पॉसिबल नहीं है. सो ही इज आर्ग्यूइंग इन अ सर्कुलर वे and that is the reason why Mill is committing the fallacy of petitio principii. Petitio principii, ठीक है? Petitio principii is the fallacy committed by J.S. Mill. Remember, this is also very important. Now, what is petitio principii? Petitio principii क्या है? Petitio principii का मतलब है arguing in a circular way. एक ही बात को घुमा घुमा के बोलना, उसको बोलते हैं पिटिशियो प्रिंसिपल. किसी रिजल्ट तक, किसी कंक्लूजन तक ना पहुंचना, बट एक ही बात को, अपने बात को सिर्फ घुमा घुमा के एक ही चीज को बोलना, दैट इज कॉल्ड पिटिशियो प्रिंसिपल. ओके, एंड मिल इज कमिटिंग दिस फैलेसी ऑफ पिटिशियो प्रिंसिपल जब वो बोलते हैं कि लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर इज बोथ ग्राउंड ऑफ इंडक्शन एंड इट इज द रिजल्ट और कंक्लूजन ऑफ इंडक्शन. ओके, एक ही चीज को, एक ही लॉ को वो ग्राउंड भी बता रहे हैं और रिजल्ट भी बता रहे हैं. ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई हिज statement is considered as fallacious and he commit the fallacy of petitio principii, means arguing in a circular way. Okay, clear? Now let us go to the next point. Law of uniformity of nature, as it is the result of unscientific induction, so it cannot be certain. ठीक है? Now अगर हम लोग ऐसा सोचे कि ठीक है, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर इज द रिजल्ट ऑफ इंडक्शन एंड द ग्राउंड ऑफ इंडक्शन ऑल्सो. ठीक है, हम लोग अगर ऐसा सोच के मान के ले कि मिल का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. ओके, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? इसमें ये प्रॉब्लम आएगा कि नेचर का जो बिहेवियर है, जो हम लोगों को पता है दैट नेचर इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, ये बात तो सर्टेन है, राइट? नेचर कभी चेंज नहीं होगा. इट इज नॉट प्रोबेबल. प्रोबेबल मीन्स जो फ्यूचर में जाके चेंज हो जाता है. सर्टेन मीन्स जो हमेशा सेम रहता है. ठीक है, सो द बिहेवियर ऑफ नेचर विच वी परसीव थ्रू आवर एक्सपीरियंस, वी नो दैट नेचर इज यूनिफॉर्म. बट as we already know, the conclusion of unscientific induction is not certain but probable. Okay, so ये जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर है ये भी प्रोबेबल होगा, सर्टेन नहीं होगा. मतलब आज नेचर एक तरह से बिहेव करेगा, इन फ्यूचर नेचर दूसरी तरह से भी बिहेव कर सकता है, बिकॉज इट इज नॉट सर्टेन, इट इज प्रोबेबल. सो ये एक प्रॉब्लम आ सकता है अगर हम लोग लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को रिजल्ट ऑफ इंडक्शन माने. ओके, अगर हम लोग लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को अनसाइंटिफिक इंडक्शन का रिजल्ट माने, लाइक इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अनसाइंटिफिक इंडक्शन, इट इज द रिजल्ट ऑफ कंक्लूजन ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन, तो फिर हम लोग कभी भी यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को सर्टेन नहीं मान सकते. इट मस्ट बी प्रोबेबल, बिकॉज अनसाइंटिफिक इंडक्शन हमेशा प्रोबेबल रिजल्ट देता है, सर्टेन रिजल्ट नहीं देता है. मतलब हो सकता है कि इन फ्यूचर नेचर जिस तरह से अभी बिहेव कर रहा है उस तरह से बिहेव करना चेंज कर दे अपना बिहेवियर, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नेचर विल नेवर चेंज इट्स बिहेवियर. इट विल ऑलवेज बिहेव इन द सेम वे अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, राइट? सो हाउ कैन इट बी द रिजल्ट ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन? तो फिर ये अनसाइंटिफिक इंडक्शन का रिजल्ट कैसे हो सकता है? अगर
ये सर्टेन ही नहीं होगा तो फिर ये अनसाइंटिफिक इंडक्शन का रिजल्ट कैसे होगा, राइट? सो ये भी इधर में भी एक प्रॉब्लम निकला है दैट द uniformity of nature cannot be the result of induction, because if it is the result of induction then it should be certain, it should be probable, but uniformity of nature is not probable. ये future में change नहीं होगा, it is certain. The law of uniformity of nature is certain, and this is the reason why it cannot be the result of unscientific induction. Okay, let us go to the last point. And if it is the basis of induction, then how can we prove it by means of induction? ठीक है? और एक कंफ्यूजिंग पॉइंट कि अगर ये पहले पॉइंट में मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर ये रिजल्ट है, इंडक्शन का रिजल्ट है, तो फिर इसको प्रोबेबल होना चाहिए. लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर अगर अनसाइंटिफिक इंडक्शन का रिजल्ट है तो अनसाइंटिफिक इंडक्शन हमेशा प्रोबेबल रिजल्ट देता है. तो लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को भी प्रोबेबल होना चाहिए, पर लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर इज नॉट प्रोबेबल, इट इज सर्टेन, सो इट कैनॉट बी द रिजल्ट ऑफ इंडक्शन. ओके, एंड इफ इट इज द बेस और ग्राउंड ऑफ इंडक्शन, देन हाउ इट विल बी प्रूव बाय इंडक्शन. अगर ये इंडक्शन का ग्राउंड है तो फिर कैसे इंडक्शन उसको प्रूव करेगा, इंडक्शन उसको कंक्लूजन बना देगा. कोई चीज अगर ग्राउंड है सो इट कैनॉट बी द कंक्लूजन. इफ इट इज द बेस ऑफ इंडक्शन इट कैनॉट बी द कंक्लूजन ऑफ इंडक्शन. ओके, गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज वाई दिस Mill's statement of paradox of induction is a fallacious statement. It commits the fallacy of petitio principii, that is arguing in a circular way, and so it is considered as a paradox. Okay, though it is little confusing, आप लोग ये वीडियो ध्यान से सुनिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. Okay, now let me revise today's topic once again and try to make it more simple. Okay, so today's topic is paradox of induction. Paradox का मतलब है दो चीज एक साथ होना, which is not possible. ठीक है? Now, according to J.S. Mill, paradox of induction means the law of uniformity of nature is the result of induction as well as the ground of induction. मतलब मिल के लिए जो लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर है वो इंडक्शन का कंक्लूजन भी है और इंडक्शन का बेस भी है. ओके, सो इस व्यू पॉइंट को बहुत से लॉजिशियन ने क्रिटिसाइज किया है बाय सेइंग दैट ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि एक ही चीज रिजल्ट भी हो और ग्राउंड भी हो. कैसे हो सकता है? एक ही चीज रिजल्ट भी है और ग्राउंड भी है. हाउ इट इज पॉसिबल, राइट? सो if we considered is as the result of unscientific induction. Why the result of unscientific induction? Because ये जो uniformity of nature है ये हम लोगों को पता चला है through our experience, and unscientific induction में भी हम लोग conclusion निकालते हैं through our experience. So if we consider it as the result of unscientific induction, then it should be probable. Okay, but law of uniformity of nature is not probable, it is certain. So it cannot be the result of unscientific induction. And if it is the result of induction, then how can it be the ground? मतलब उसी रिजल्ट, अगर रिजल्ट ऑलरेडी ग्राउंड है तो फिर रिजल्ट को निकलने का जरूरत ही तो नहीं है यहाँ पे. इट इज ऑलरेडी द ग्राउंड जिसके बेसिस पर इंडक्शन जनरल रियल प्रोपोजिशन एस्टैब्लिश करता है. So law of uniformity of nature is already the base, the ground of induction. Then how can it be the result of induction? Right? अगर वो ग्राउंड है तो उसको हम लोग फिर से रिजल्ट या फिर कंक्लूजन बना के क्यों प्रूव करें? It makes no sense, right? That is why it is considered as a paradox. Now इस पैराडॉक्स को हम लोग कैसे तोड़े? ये जो इतना सारा कंफ्यूजन है यहाँ पे, इस चीज को हम लोग कैसे तोड़े? हाउ कैन वी कम आउट फ्रॉम दिस पैराडॉक्स? वी कैन कम आउट फ्रॉम दिस पैराडॉक्स इफ वी कंसिडर ओनली वन थिंग. ओके, आइदर इट इज द रिजल्ट ऑफ इंडक्शन
और इट इज द ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। दोनों में से एक चीज को हम लोग कंसिडर अगर करें तो फिर हम लोग इस पैराडॉक्स से निकाल सकते हैं। हम लोगों को आइदर ये मान के चलना पड़ेगा दैट लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर इज द रिजल्ट ऑफ इंडक्शन, या फिर हम लोग ये मान के चले कि लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर इज द ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। पर अगर हम लोग मिल की तरह लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को ग्राउंड भी मानेंगे और रिजल्ट भी मानेंगे, देन वी विल कमिट द फैलेसी ऑफ पेटिशियो प्रिंसिपल, which means arguing in a circular way. Okay? So, अगर हम लोगों को ये फैलेसी कमिट नहीं करना है, अगर हम लोगों को इस पैराडॉक्स को तोड़ना है, तो फिर what we will do? We will consider only one thing out of the two. Like, we will consider law of uniformity of nature as a result of induction, or we will consider it as a ground of induction. So this is known as paradox of induction. Once again, let me define what is paradox of induction. Law of uniformity of nature is considered as the ground of induction as well as the result of induction, which is known as the paradox of induction. Okay? I think I have made myself clear. If there is any confusion regarding this lecture, you can comment me in the comment box. Any question if you have regarding this lecture. Or else we can also discuss in our Google Meet class. So it's my suggestion to all of you, you should always be present in the Google Meet class, especially boys. आप लोग Google Meet class में बहुत एब्सेंट हो रहे हो, जिसके वजह से you may be in trouble in future. So it's my suggestion to all of you that you should be present in the Google Meet class and watch the videos properly. Okay? Okay then, have a nice day all of you.